آپ کو میں بتاؤں کہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے کہ تحریک لبیک کے جو تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کے سربراہ جناب مولانا سعد رضوی، ان کے خلاف کافی بڑی تحریک اب بن رہی ہے اور اس میں کئی لوگ پیش ہیں، اور میں آپ کو پہلے سے یہ خبر دے رہا ہوں کہ سعد رضوی کے خلاف ایک اہل سنت والجماعت کے کافی افراد جو ہیں وہ اکٹھے بھی آج ہوئے۔ پاک پتن میں اس حوالے سے آج ایک افطار کے اوپر میٹنگ ہوئی، بڑی دھواں میٹنگ ہوئی، اور اس میں کیا کیا وجہ تھی اور کون کون لوگ شریک تھے وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہ فیکٹ ہے کہ سنی العقیدہ لوگوں کے اندر، خاص طور علماء کے اندر، خاص طور پہ گدی نشینوں کے اندر، جو گدی نشین ہیں وہ ہمارے پیر بھائی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، کاروں میں سعد رضوی کے خلاف اس وقت بہت آگ کی چنگاریاں پائی جا رہی ہیں اور وہ مولانا سعد رضوی کو ہٹانا چاہتے ہیں وہاں سے۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ آج 25 اپریل ہے اور کچھ دیر بعد سحری کا وقت ہونے والا ہے۔ سکرین پر آنے والی یہ شخصیت مبشر لقمان ہیں۔ میرے دل میں جو بھی حسرتیں تھیں، نہ وہ تجھے ملی نہ وہ مجھے ملی۔ میرے دل میں جو بھی خواب تھے، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا۔ زباں ملی تو کٹی ہوئی، قلم ملا تو بکا ہوا۔ بڑے ذہین اور انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، لیکن حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرنے، حقائق کو مسخ کرنے اور خواہشات کو خبریں بنا کر پیش کرنے پر اگر جاگیر وغیرہ کا انعام ملتا تو یقیناً مبشر لقمان صاحب کی جاگیر اورنگزیب عالمگیر جتنی بڑی تو ضرور ہوتی۔ ایک ٹی وی چینل پر کھرا سچ کے نام پر پروگرام کرتے ہیں، بڑے اینکر ہیں، بڑے ذہین انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، اور یوٹیوب پر بھی ان کا ایک چینل ہے اور وہ بھی بہت بڑا چینل ہے، 1.3 ملین ان کے سبسکرائبر ہیں۔ لیکن آج میرا موضوع ان کی تعریف کرنا نہیں، ان کے کچھ ویڈیوز ویلاگ سے اختلاف ہے۔ انہوں نے یہ جو ویلاگ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاک پتن میں ایک کانفرنس ہوئی ہے جس میں سنی مسلک کے علماء، مشائخ اور سجادہ نشینوں کا ایک خفیہ اجلاس ہوا ہے، جس میں انہوں نے علامہ سعد رضوی کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہے اور ان کو تنظیم سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی باتیں آپ خود سنیں۔ میں آپ کو کئی دن پہلے میں نے ویلاگ کیا تھا اور اس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہ صرف اس حکومت کے بلکہ پاکستان کے خلاف کتنی باہر کی فورسز جو ہیں وہ اکٹھی ہو چکی ہیں اور وہ پاکستان کو کس طرح سے ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ عمران خان اور جہانگیر ترین کی لڑائی کر کے ان کو فائدہ ہو، چاہے وہ پی ڈی ایم کی تحریک کو کھڑا کر کے ان کو فائدہ ہو، چاہے وہ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان جو اختلافات تھے ان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوں، پولیس والوں کو مارنا ہو، پولیس کی گاڑیوں کو نظر آتش کرنا ہو، چاہے اب یہ دھماکے آپ جو دیکھ رہے ہیں جن کا پتہ چل رہا ہے یہ ہو۔ مبشر لقمان صاحب نے اپنے اس ویلاگ میں بتایا ہے کہ پاک پتن میں سجادہ نشینوں، علماء، مشائخ کا ایک اجلاس ہوا ہے یا کانفرنس ہوئی ہے۔ اس اجلاس میں تحریک لبیک کے سربراہ علامہ سعد رضوی کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، جبکہ یہ بات بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں سنی مسلک کے علماء، مشائخ اور مختلف درباروں کے سجادہ نشینوں نے یہ کانفرنس علامہ سعد رضوی اور تحریک لبیک کے اس موجودہ دھرنے میں شہید ہونے والے ساتھیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کی تھی، لیکن مبشر لقمان صاحب نے تو کشتوں کے پشتے لگا دیے، بات کا رخ ہی بدل دیا۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، اس دھرنے کے پیچھے غیر ملکی طاغوتی طاقتیں تھی، ہندوستان تھا، پی ڈی ایم کے پیچھے بھی یہی کچھ تھا، تو سارا ایک پکھنڈ پھیلایا گیا تھا صرف اور صرف حکومت کو گرانے کے لیے۔ تو جناب ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے وہ ویلاگ بھی دیکھیں، جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا اس وقت آپ کیا کہتے تھے؟ ایک وقت تھا جب نواز شریف نے
चौधरी सरवर को गवर्नर पंजाब बनाया, तो आप कह रहे थे एक शराबी आदमी को नवाज़ शरीफ ने गवर्नर बना दिया है, और वक़्त का पहिया घूमा, कुछ अरसे के बाद चौधरी सरवर साहब फिर इस तनख्वाह पर काम करने को राज़ी हो गया, लेकिन ये तनख्वाह PTI की तरफ से थी। चौधरी सरवर साहब फिर गवर्नर बने, तो आपने कहा एक ईमानदार सच्चा मुहिब वतन आदमी गवर्नर बन गया है। आप तो मुल्क नया पाकिस्तान बना के ही छोड़े, इलेक्शन हार गई। तो आप तो बिल्कुल जानबदारी का इस तरह तबला ना खड़काया करें, क्योंकि सहाफ़ी को गैर जानबदार होना चाहिए। अब आगे देखें क्या फरमा रहे हैं मसूफ़। ये सारा लीड कर रहा है ईद के दिन तक। ईद के दिन तक पाकिस्तान में इन चीज़ों के अंदर बहुत तेज़ी आनी है, क्योंकि ईद के दिन फाटफ का इजलास हो रहा है, और उसमें इंडिया और फ्रांस जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को वो खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट करवा सके। और फ्रांस का बड़ा क्लाउट है, हम माने या ना माने, फ्रांस का बड़ा असर रसूख है, उसका क्लाउट है फाटफ के अंदर, उसका क्लाउट है यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसका क्लाउट है और जगहों पे। मुबश्शिर साहब, आप फरमा रहे हैं कि फ़्रांस का बड़ा क्लाउट है। मेरे अल्लाह का कोई क्लाउट नहीं है, मेरे नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई क्लाउट नहीं है। दुनियादारी में इतना भी ना खुब जाया करें। तो आज का इनका जो वीलॉग है, दोस्तों साथ रहिए, मैं पूरे वीलॉग के बखिया देड़ दूँगा। ये बिल्कुल झूठ पर मबनी है, और मैं आपको तमाम उलमा हजरात की बातें भी सुनवाऊँगा जो ये कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ हुई। ये कॉन्फ्रेंस उनके हक़ में हुई थी। साद रिजवी साहब के साथ जेल में मुज़ाकरात हुए, साद रिजवी साहब ने स्टेटमेंट दी, मैं उसको कट शॉर्ट करके बता दूंगा कि बाकी तो आपको बात पता ही है पूरी। और उसके बाद वो धरने ख़त्म हो गए, वो धरने ख़त्म हो गए। ये सारे जो बड़े लीडर्स हैं ये ज़ीरो होके रह गए। तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि इनके पीछे इंडिया है, इनके पीछे CIA है, दीगर एजेंसियां हैं। ये बड़ी साजिश हो रही थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अगर आपकी बात को सच मान लिया जाए तो फिर उस साजिश का जो मेन मोहरा है उसके साथ मुज़ाकरात का क्या तुक बनता है। मुबश्शिर लकमान साहब ने ये वीडियो भी अपने वीलॉग में पेश की है, और इसके बारे में उनका दावा है कि ये खुफिया कॉन्फ्रेंस थी, इसकी वीडियो किसी के पास नहीं थी। ये शर्फ सिर्फ मुबश्शिर लकमान साहब को हासिल है, और ये वीडियो उनकी चड़ेल लेकर आई। ये भी उनकी बात सुने, और उसके बाद तमाम उल्मा, मशाइख और सज्जादा नशीनों की तकरीरें मैं आपको सुनवाता हूँ। ये बिल्कुल खुफिया कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये एक एलानिया कॉन्फ्रेंस थी, और तमाम अदारों को इसका पता था, और उस जगह के लिए भी बाकायदा DC साहब से इजाज़त ली गई जिस मैरिज लॉन में ये फंक्शन हुआ है, सिटी मैरिज लॉन। तो ये सारा का सारा झूठ का पलंदा है, और कहानी का बिल्कुल रुख ही चेंज कर दिया है मुबश्शिर लकमान साहब ने। वाली शरीफ, और मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये जब मैं ये नाम बोल रहा था तो आप वीडियो देख रहे थे। ये वीडियो किसी के पास नहीं है, ये वीडियो मेरी चुड़ैल जो है वो लेके आई। खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि नमूस रिसालत अक़ीदा ख़त्म नबूवत के दफ़ा में आखिरी हद और आखिरी सांस तक पहरेदारी करेंगे। हमारा मंशा और मकसूद अल्लाह और इसके रसूल की खुशनुदगी है। नाज़रीन, अब आप सच भी सुनते जाएं और ये वीडियोस भी देखते जाएं जिनके बारे में मुबश्शिर लकमान का दावा है कि ये सिर्फ़ उनके पास है, उनकी चड़ेल के पास है, और कहानी को जो उन्होंने रंग दिया है वो भी आप हक़ाइक़ अपनी आँखों से देख लें और अपने कानों से सुन लें कि मुबश्शिर लकमान साहब का ये वीलॉग सिर्फ़ और सिर्फ झूठ का पलंदा है। मुबश्शिर लकमान साहब, आप झूठ बोलें और हम सच बोलेंगे। हमारा सच सुनते जाओ और शर्माते जाओ। खुद के दाई और खैरख्वाह हैं। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि करोड़ों आशिकान रसूल के जज्बात की अक्कासी करते हुए गुस्ताखान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुसरकोबी की रहे और इंटरनेशनल सतह पर ना सिर्फ आवाज़ उठाएं बल्कि आइंदा के लिए भरपूर लाए अमल इख्तियार करें कि कोई भी शख्स अल्लाह करीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की गुस्ताखी करने का सोच भी ना सके। जो यहाँ तशरीफ़ लाई है उन सब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। ख़ास तौर पे हज़रत पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह साहब का, हाजी इहसानुल्लाह फरीदी साहब का,
हाफिज गुलाम कुतुबुद्दीन साहब का, मुफ्ती मोहम्मद सरफराज साहब का, अपने भाई पीर सैयद नबीलुर रहमान शाह साहब का और कमर जुगनू फरीदी साहब। हमारा माल, हमारी जान, हमारी औलाद, हमारे माँ बाप और हमें जो कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला ने अता फरमाया है सब नमूसे रिसालत के लिए इंशाअल्लाह ताला कुर्बान करेंगे और हम ये बताएंगे कि ये नबी पाक के गुलामों का ये मुल्क है। इसमें ये कोई मसलत पसंदी, कोई नजरिया ज़रूरत, कोई इंशाअल्लाह हम नहीं चलने देंगे। गुस्ताख बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। पहले मैं इधर एक बात मैं और ऐड कर देना चाहता हूं कि इसी फाटफ के बहाना लेके हमारे मदारस और हमारे मज़ारों पे पाबंदी लगाई जा रही है। रजिस्ट्रेशन के बहाने हमें तंग किया जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें, हमारी गैरत ईमानी को मत झंझोड़ें, हमारी गुलामी का टेस्ट मत लें। सिर्फ एक मैं जुमला कहूंगा, जो ताकत के ऐवानों में बैठे हैं कि भाई हम ना अपने मुल्क के खिलाफ हैं और ना ही अपने मुल्क के किसी भी नुकसान के रवादार हैं। आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे और आपके दरमियान, इसको खत्म करें, इसको खत्म करें। हम हमसे बस हजूर के बारे में कोई बात ना करें, बाकी हम आपसे कुछ नहीं पूछते। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात के मुतल्लिक कोई आप बात ना करें, बाकी जो मर्जी करी जाए आप। 30 साल में जो किया ये आपका अपना अमल है, हम भी आपसे पूछे, वो पूछने वाले पूछ रहे हैं, पूछते रहेंगे। लेकिन हजूर की जात पर जब बात आएगी तो फिर दोस्तों मेरा और आपके ईमान का तकाजा है कि फिर हम आराम से नहीं बैठ सकते। तो इसलिए जो पाकिस्तानी फौज है, सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो वतन अजीज के माथे का झूमर है, हम उनके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। लेकिन यह है कि जब नबी की बात आएगी तो फिर जज्बात ऐसे बढ़ जाते हैं कि कुछ अनहोनी भी हो जाती है। अल्लाह की हजूर की खत्म नबूवत के इस कानून की खुद हिफाजत फरमाए। और वो हमारे हाफिज साहब बड़ी प्यारी बात करते होते हैं कि मालिक कांड नहीं लगन देंगे, तो उन्होंने अपने इन गुलामों ने मुस्तफ़ा की भी कांड नहीं लगने दी और ना लगने देंगे। अल्लाह की इनकी बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजूर की मोहब्बत अदब व गुलामी में रखे, हजूर की मोहब्बत अदब व गुलामी में मारे और हजूर की शफाअत कुबरा से भी सरफराज फरमाए। आप सब हजरात के कदमों पे हाथ रख के एक मरतबा फिर शुक्रिया, और किबला दीवान साहब को अल्लाह की मजीद हिम्मतें, ताकतें, इज्जतें, रिफतें और बाबा साहब के फैज़ का सही मानों में अमीन बनाए। आमीन वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए इस हुकूमत को ये जो काम किया, अभी कुरेजा साहब फरमा रहे थे कि दहशतगर्द लबैक को करार दिया, इन्हें ये पता ही नहीं कि ये खुद आईने पाकिस्तान की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। जितना काम इन्होंने इस वक्त किया है मदारस के सिलसिले में, रजा साहब को दादू ख्वाजा साहब को कमीशन से भी चले कि ये मदारस पे ये एजेंडे पास कर रहे हैं, ये रूल्स पास कर रहे हैं। मैंने ख्वाजा साहब को अर्ज किया कि ये एक भी पास कर लें, ये सदर पास कर दे, गवर्नर पास कर दे, ये सारे आईने पाकिस्तान की खिलाफवर्जी है। ये सारे हाई कोर्ट में चले जाए, एक इनका पास किया एजेंडा नहीं रहेगा। ये इंशाअल्लाह अजीज शर्म की मार बुरी मार खाएंगे। भाई करे तो सही, कम अज कम हक बात बताना तो हम पे लाजिम है। मैं सोच रहा था जिस दिन ये सारे हालात थे, अब मैंने कहा, मैं दिल में सोचा कितना लोगों को कोरोना हुआ चले गए, कितना मुझसे अच्छे लोग चले, कितना लोगों को हार्ट अटैक होता है चले जाते हैं, कितना हादसात में लोग चले जाने, हमें भी चले जाने, कोई पता नहीं जिंदगी का। लेकिन दिल में ये एक बात थी कि बंदा जब जाए तो गुंबद खिजरा वाला राजी, जब कब्र में जाए तो गुंबद खिजरा वाले आका की जियारत जरूर नसीब हो। आका यही कह देंगे मेरा गुलाम, ये हमारी जिंदगी का हासिल है। और मैं आखिर में ये बात खत्म करूंगा, हम अमन के दाई हैं, ये आस्ताने अमन के दाई हैं, ये जितना भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं सब अमन के दाई हैं, सब मोहब्बत के अलंबरदार हैं, सब रवादारी चाहते हैं, सब इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, सब अपने इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। हम
जो हमारे साथ कश्मीर में है वो भी हम देख रहे हैं, जो मोदी साजिशें करता है वो भी हम देख रहे हैं, जो अफगानिस्तान की तरफ से वो भी हो रहा है, ये सारा कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन हम यही पैगाम देना चाहते हैं गंज शकर के कदमों में बैठ के, गंज शकर के कदमों में बैठ के अपने तमाम हुक्मरानों को, अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों को, अपने जो भी पाकिस्तान में जितना भी जो ना अफगानिस्तान की एजेंसियों की, ना किसी तहरीक तालिबान की, ना किसी शरंगेज की, कि वो आके पाकिस्तान में हालात खराब कर सके। आप आशिकों से मोहब्बत से बात करें, उनके दिल की आवाज़ समझें। अभी जो ये हड़ताल हुई थी पूरे पाकिस्तान में, ये तो मुफ्ती मुनीब साहब ने अपील की थी। इस हड़ताल में पूरे पाकिस्तान का बंद हो जाना ये बात साबित करता है कि इश्क मुस्तफ़ा का मसला सिर्फ एक जमात का नहीं, सिर्फ एक जमात का नहीं, पाकिस्तान का मसला है, आशिकान रसूल का मसला है। यकीन जाने हमारी बच्चियां बेटियां वो भी घरों में रो रही थी। उशकान मुस्तफ़ा जितने भी हैं इनका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर है तो हुकूमत वक्त का है कि आप एक जमात से वादा करते हैं, आप मुआहदा करते हैं, और अभी वो तारीख जो है जो आपने वादा करके ली है अभी वो आई नहीं है। उससे पहले आप उस शख्स से जिससे आपने वादा किया है कि हम फलां तारीख को आपका वादा पूरा करेंगे, उससे पहले ही आप उसे गिरफ्तार करते हैं, तो ये तो आप ज्यादती करते हैं, ये तो आप वादा खिलाफी करते हैं, ये तो आप पूरे मुल्क में फितना खुद ही पैदा करते हैं, ये तो आप ये इसमें अब हम क्या कहें कि पुलिस यहाँ पे तशरीफ फरमा नहीं है। मैं अर्ज करूंगा किबला कि यहाँ पे जितने भी अहले सुन्नत के हजरात हैं सबको इकट्ठा किया जाए और एक ही मौक़िफ़ सबका जानना चाहिए कि पता चले कि आशिकान रसूल अभी भी इस मुल्क में जिंदा है और क़यामत तक इंशाल्लाह हम अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे। और ये जो आपका हुक्म है किबला दीवान साहब, ये मैं अपने सज्जाद नशीन साहब की खिदमत में भी अर्ज करूंगा और इंशाल्लाह अगला लाएअमल जो है हम मिलके जो हजरात यहाँ पे तशरीफ फरमा नहीं है इंशाल्लाह मिलके इकट्ठा बयान करेंगे। जी मैं इजाजत चाहूंगा जी, मेहरबानी। सलातो सलाम भी पढ़ते थे और गोलियां खाते थे। और मैंने एक तरफ ये भी देखा, आपने भी देखे होंगे कई फुटेजेस कि डेरा गाजी खान के एक सब इंस्पेक्टर को पकड़े हुए डीजी खान का वाकया गाजी घाट पे लेके जा रहे थे, वो तशद्दुद भी हमने देखा, उनका भी हमें अफसोस है। लेकिन बात ये है, ये सही फरमाया हजरत ने, बात ये है कि मामले को मैनेज करना हुक्मरानों का काम है, सही सिंत पे चलना हुक्मरानों का काम है। आशिक तो मर मिटने के लिए हर वक्त तैयार है। मुझे एक बंदे की बात बड़ी खूब पसंद आई, उसने कहा आशिक को क्या समझ आनी, आप आशिक को लाख गोलियां मार दें, डंडे मार दें, आशिक तो है ही आशिक। बागे बहिश्त वस्फ़े जमाले मोहम्मद अस्त, बागे बहिश्त वस्फ़े जमाले मोहम्मद अस्त, खत्मुर रुसुल सिफाते कमाले मोहम्मद अस्त, हर कसब आरज़ुए खिसाले मोहम्मद अस्त, मकसूद माँ मोहम्मदो आले मोहम्मद अस्त, मकसूद माँ मोहम्मदो आलो असहाबे मोहम्मद अस्त। गर्गी का लेवल है, ये तो दहशत गर्दों को तो कहते ही नहीं दहशत गर्द है। सबसे बड़ा दहशत गर्द अमेरिका है, सबसे ज्यादा दहशत गर्द फ्रांस है जिसने ये गंदा काम किया सरकार की न्यूज का। तो हमारे अकाबर ने 3 दिन पहले पहले खीर में शाह साहब तरावियां छोड़ी मेरे पास, लेकिन हम पुरतशद्दद एहतजाज को मसले का हल नहीं समझते। हम ये चाहते हैं कि मुल्क के पाकिस्तान के हुक्मरान अरबाब इख्तियार वाले इस मसले का हल करें और जो ये मिस हैंडलिंग हुई उसकी इंक्वायरी कराएं और फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करके तमाम फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स पे पाबंदी लगनी चाहिए, बैन लगना चाहिए। अगर मैं समझता हूं कि इक्तिसादी पाबंदियां आ जाएंगी, फ्रांस नाराज हो जाएगा, जरूरत कोई इंशाल्लाह हम नहीं चलने देंगे। गुस्ताख बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। इंशाल्लाह ताला हम अपनी जिंदगियां लुटा देंगे। सैयद फैजुल हसन शाह साहब काज़मी, चीफ ऑर्गेनाइजर जमात अहले सुन्नत जिला पाकपतन, पीरजादा सैयद मोहम्मद उस्मान शाह साहिब, तहसील अमीर जमात अहले सुन्नत पाकपतन शरीफ, नायब अमीर जमात नामूस रिसालत की बात करने वाले हैं और ख़त्म नबूवत की बात करने वाले हैं। और मैं हुकूमत वक्त से, मैं उम्र में मैं छोटा हूँ,
ادب کا مقام یہ ہے کہ میں گفتگو جو ہے اپنی وہ جب خواجہ عامر فرید کریجہ رحمت دینی لوگوں کو اس کی ذمہ داری سونپی جائے۔ دعا سے قبل ہم ان تمام علماء مشائخ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے کسی بھی فارم پر ناموس رسالت ختم نبوت کے دفاع کے لیے کام کیا اور آواز اٹھائی۔ ہم آپ سب مشائخ اور علماء کرام کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے انتہائی شارٹ نوٹس پر آج کی اس نشست میں شرکت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کی حفاظت فرمائے اور ملک پاکستان اور عالم اسلام کی خیر فرمائے، آمین۔ دعا کا جام۔ پروردگار اس ملک کو امن عطا فرما، اور ہم سب کو سب سے پہلے مولا، سب سے پہلے ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں، ہمارے لیے حکومتیں، ہمارے لیے دنیاوی مفادات، یہ سب بعد میں، ہمارے اپنے بچے بعد میں، ہمارے اپنے وجود بعد میں، سب سے پہلے آقا کریم کی جو محبت ہے وہ میرا مولا، وہ سب سے ہمارے لیے قیمتی افضل خزانے مولا حضور کی سچی غلامی نصیب فرما، اور میرا مولا حضرت دیوان حامد سنگھ کو آپ کی عمر دراز فرما، اور تمام مشائخ العظام، جتنا اکابرین اہل سنت یہاں پہ، اور جتنا رہنما آستانوں کے جتنا مشائخ اور مختلف درگاہوں سے یہاں تشریف فرمائے مولا، ان سب کے فیض و برکات سے سب کو مستفید فرما، اور میرا مولا ان کی رہنمائی میں وطن عزیز پاکستان کے اوپر اشاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم بلند رہے مولا، کرم فرما۔ حافظ قطب الدین صاحب، آپ انتہائی محبوب شخصیت ہیں، آپ کی عمر دراز فرما۔ احتان علیہ سیاض شریف سے حضرت پیر صاحب تشریف لائے، جتنا بھی حضرات تشریف لائے، حضرت قبلہ گیلانی صاحب اور ہمارے عابد بھائی اور جتنا ثنا خان مصطفیٰ اور کافی حضرات چلے، کافی سادات، کافی پیران عظام پورے ملک بھر سے آئے ہوئے تھے، وہ سفر ان کا خیر سے گزرے۔ سرفراز صاحب، علامہ صاحب میرے بہت محبوب ہیں، لپا شریف سے سب، خالد صاحب اور یہ سارے بیٹھے، ان کے اوپر بھی کرم فرما، اور علی بابا اور جتنا ٹیم ہے آپ کی، ہمیشہ قبلہ جو حامد سنگھ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ہمارا پیارا بیٹا جو ہے حضور کا قاسم فریدی، اور سب کے اوپر کرم فرما۔ علی عمران حتیانہ صاحب، ان کا جو کردار ہے مولا وہ بھی قبول فرما، اور میں عاجز اور مسکین کی حاضری قبول و منظور فرما۔ اللہم ارحم علینا بحرمت سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نئے آنے والے دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا